Hello friends, welcome back. I am once again here with interesting videos of chemistry. In the last video we have discussed about the imperfection in solids. Solid crystal में defect किस तरह के होते हैं. तो since we have studied in the last video, in the previous video, about the stoichiometric defects, means in those defects the ratio of cation and anion remains same within the crystal. Today we will talk about the non-stoichiometric defects, means those defects in which the number of cations and number of anions are not same. The ratio of number of cation and anion alters or changes within the crystal. Such defects are called non-stoichiometric defects. Means these are the defects in which the ratio of cation and anion alters within the crystals. Means इनमें क्या होता है कि जो कैटाइन और एनाइन का नंबर होता है, लेट अस सपोज मेरे पास एक क्रिस्टल है, उसमें 10 कैटाइन थे, 10 एनाइन, परफेक्ट क्रिस्टल में, लेकिन ड्यू टू एनी डिफेक्ट द कैटाइन और एनाइन नंबर चेंजेस. मीन्स इफ द कैटाइन बिकम 9 एंड एनाइन रिमेन सेम, देन इट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन विच द रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन alters, means ratio of anions and cations changes, are known as non-stoichiometric defects. These are the defects shown by D block elements. Mostly these are the defects shown by D block elements. Non-stoichiometric defects is of two types. One is metal excess defect. Next, metal deficient defect. As the name indicate, most of the processes in chemistry are just these are just acknowledged, or these are just framed as per their name, since this is called metal excess defect and other is called metal deficient defect. In metal excess defect, it means there will be the increase in number of cations, or you can say that in these defects the number of cations are greater than the number of anions, whereas in metal deficient defect the number of cation are less than the number of anions. Non-stoichiometric defects, देखो non-stoichiometric defects are those defects in which number of cations are not equal to number of anions. There are two cases, either the number of cation will be greater than number of anion or number of cation will be less than number of anion. If number of cations are greater than number of anions, these are called metal excess, because positive charge is in greater number and positive charge refers to metal, because metals are electropositive in nature, that's why these are named as metal excess. And in those defects in which number of cations becomes less than the number of anion, then these are called metal deficient, because in these defects the cation number decreases. So let's discuss one by one what are metal excess defects and what are metal deficient defects. Let us suppose, firstly we will take into consideration metal excess defects. Metal excess defects are those defects in which number of positive charge, number of cations increases, in which number of cation increases. If I have a crystal, let us suppose I take an example of crystal in which number of cations, let us suppose number of cation is 10 and number of anion is 10, means it is a perfect crystal in which the ratio between cation and anion is same, means stoichiometric. Anyhow the number of cation increases, means metal excess defects are those in which the number of cations increases. कहने का मतलब ये है कि मेटल एक्सेस में क्या होता है कि जो कैटाइन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. अब कैटाइन दो तरह से बढ़ सकते हैं, या तो मैं इसमें एक और कैटाइन को ऐड कर दूं, दूसरा प्रोसीजर ये है कि मैं इसमें ऐड करने के बजाय एक एनाइन को बाहर निकाल दूं. देखो किसी भी चीज का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर ऐड अ पॉजिटिव चार्ज और remove a negative charge. Means
you can add a positive charge to increase the positivity of the crystal, or you can remove a negative charge to increase the positivity of the crystal. तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि मेटल एक्सेस जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो एनाइन को बाहर निकाल दिया जाए ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, सेकेंड वन इज कैटाइन एडिशन. कैटाइन एडिशन. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस metal excess defect due to anion vacancy. Anion vacancy means if an anion leaves the crystal lattice, if a negatively charged ion leaves the crystal lattice leaving behind a vacancy, then it is called metal excess defect due to anion vacancy. Let us suppose I have a crystal in which the number of cations are equal to number of anions, in which number of cations are equal to number of anions. If I remove an anion from there, it means if I remove the negative charge from there, there will be short of negative charge. There will be, if I anyhow I take an example 10 positive and 10 negative, I have a crystal in which there are 10 cation and 10 anion. If I remove an anion from the crystal, then the remaining number of cation will be 9. मीन्स अगर मैं यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव कम होने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव बढ़ गए, पॉजिटिव नेगेटिव से बढ़ गए, रेशियो जो थी वो पॉजिटिव की बढ़ गई एज कंपेयर टू नेगेटिव की. तो सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी. एनाइन वैकेंसी मीन्स यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज था वो बाहर निकल गया. अब जहाँ से जो नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, यहाँ पे वैकेंसी बन जाएगी, यहाँ पे एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी. इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, लेट अस सपोज यहाँ पे क्लोरीन आयन था, यहाँ से बाहर निकला तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा. क्लोरीन जो है जब वो बाहर निकलेगा तो Cl जो है वो बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा. जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में बाहर निकलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है. तो इसके दो केसेस हैं, वन इज ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, अदर इज ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटाइन. तो एनाइन वैकेंसी में क्या होता है, एनाइन बाहर निकल जाता है तो एक वैकेंसी प्रोड्यूस होती है. वैकेंसी को फुलफिल कौन करता है, जो एनाइन, जब एनाइन बाहर निकला उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, बिकॉज वो एटॉमिक फॉर्म में निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और खुद एटम बन के बाहर निकल जाएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन्ड रहती है, वो मेंटेन्ड रहती है इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. तो इसमें क्या होता है, व्हेन एन alkali metal halide is heated in atmosphere of alkali metal, means I have a alkaline halide, let us suppose sodium chloride, and I heat it in the presence of sodium vapors. तो सोडियम वेपर की प्रेजेंस में क्या होगा, जैसे ही सोडियम इसके अंदर एंटर कर रहा होगा तो क्लोरीन क्या कर रहा होगा, यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहा होगा. तो क्लोरीन, जैसे ही मैं सोडियम वेपर के साथ इसको हीट करूंगा, क्लोरीन यहाँ से सोडियम के साथ निकल जाएगा बाहर, तो सोडियम क्लोराइड बाहर. तो जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे रह जाएगा, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे रह जाएगा और क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देगा. तो कहता है एनाइन वैकेंसी आर क्रिएटेड, दिस एनाइन इज देन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल. जो एनाइन के वैकेंसी, एनाइन ने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ दिया, वो सरफेस पे चले जाएगा क्रिस्टल की और मेटल के कैटाइन के साथ जुड़ जाएगा. जो मेटल, जैसे सोडियम था, सोडियम क्लोराइड, इसमें से क्लोरीन अपनी साइड को छोड़ के मेटल की सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा और बाहर वाला सोडियम इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, बाहर वाला सोडियम इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन के बाहर निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन के बाहर. अब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा. दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. Next one is metal excess due to presence of interstitial cation. Let us suppose I have a crystal, the number of positive charge is equal to number of negative charge. If I add
अ पॉजिटिव चार्ज इन द इंटरस्टिशियल साइट। अगर मैं इंटरस्टिशियल साइट में पॉजिटिव को ऐड करता हूँ, जैसे ही पॉजिटिव को ऐड किया तो क्रिस्टल के बीच में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्रिस्टल के बीच में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे लेट अस सपोज मेरे पास था जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल ZnO। जिंक ऑक्साइड में पहले क्या था, जितने जिंक पॉजिटिव थे इतने ही ऑक्सीजन नेगेटिव थे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थी। अगर मैंने इसमें जिंक को ऐड किया, एक और जिंक का एटम ऐड कर दिया इंटरस्टिशियल साइट में, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से क्या हुआ, इसको बोलेंगे मेटल एक्सेस, बिकॉज कैटाइन्स इंक्रीज हो गए हैं। बट कैटाइन इंक्रीज हो गए हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए जैसे ही जिंक होगा, जिंक ने Zn2 पॉजिटिव बनाया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी इंटरस्टिशियल साइट को, अदर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। कैटाइन ऐड हुआ, लेकिन कैटाइन के ऐड होने के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गए, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो इनको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटाइन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्यू टू एनाइन वैकेंसी में क्या हुआ था, यहाँ पे एक एनाइन था वो बाहर निकल गया, यहाँ पे एनाइन था वो बाहर निकल गया। अब हुआ क्या, एनाइन के बाहर निकलने से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, मीन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। देखो पहले क्या था, पॉजिटिव कितने थे 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव कितने थे 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक नेगेटिव निकलने से क्या हुआ, नेगेटिव 5 रह गए, पॉजिटिव 6 हो गए, नेगेटिव 5 रह गए और पॉजिटिव 6 हो गए। अगर नेगेटिव कम हो गया इसका मतलब पॉजिटिव बढ़ गया। तो मेटल एक्सेस हुआ किसकी वजह से, एनाइन वैकेंसी से, एनाइन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया, इलेक्ट्रॉन ने एनाइन की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, बिकॉज खाली पोजीशन पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। दूसरा इसमें यह है मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल कैटाइन। ये एक न्यूट्रल क्रिस्टल था, उसमें एक कैटाइन ऐड कर दिया। कैटाइन ऐड करने से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब हो गया नंबर ऑफ कैटाइन इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ एनाइन, इट मींस इट इज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे ही पॉजिटिव ऐड किया होगा तो जो पॉजिटिव, अब ए है, अगर वो पॉजिटिव बना होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा। जो ए अगर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता, जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है वो अनदर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है क्रिस्टल की वो मेंटेन रहे, तो इस तरह का जो क्रिस्टल होता है इनको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अंडर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या हो गया, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव बढ़ाने के 2 केस हैं, जहां तो पॉजिटिव ऐड करो, जहां तो नेगेटिव बाहर निकाल दो। तो ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिनके बीच में पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। मींस अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है, उसमें लेट अस सपोज 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, अब मेरे को यहां पे मेटल डेफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव को कम करना है। पॉजिटिव को कम करने के 2 तरीके हैं, या तो नेगेटिव ऐड कर दो या पॉजिटिव बाहर निकाल दो। तो दोनों केस डिस्कस करेंगे। लेट अस सपोज फर्स्टली हम बात करेंगे जिसमें कैटाइन मिसिंग हो जाए। इन दिस डिफेक्ट द कैटाइन आर मिसिंग फ्रॉम द इंटरस्टिशियल साइट, सॉरी लैटिस साइट, मतलब कैटाइन क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, एंड फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी another remaining cation increase its valency, another remaining cation increase its valency। देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरे पास क्रिस्टल था, यहाँ पे पहले क्या था, जितने कैटाइन थे इतने ही एनाइन थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। हुआ क्या, इसमें एक कैटाइन ने अपनी इंटरस्टिशियल साइट को छोड़ दिया। इंटरस्टिशियल साइट को छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आ गई, खाली जगह, मीन्स यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ गई। एम्प्टी स्पेस आने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज था बाहर निकल गया, अब पॉजिटिव कम हो गया, तो इसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट। तो क्रिस्टल की पूरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए क्या करता है, उसके सराउंडिंग वाला कोई और कैटाइन, जैसे ये कैटाइन है, इसके ऊपर पहले ए पॉजिटिव था, इसने क्या किया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, बन गया A2 पॉजिटिव।
और एक देखो 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था इतना ही हो गया फिर से, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। मेटल डेफिशिएंट में क्या होता है, जो कैटाइन तो बाहर निकल गया लेकिन उसके सराउंडिंग वाले कैटाइन ने अपने ऊपर एक पॉजिटिव और रख दिया, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। ये बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी स्कूल में अगर कोई स्टाफ होता है, लेट अस सपोज 15 क्लासेस हैं, मैं इनको क्लासेस ले रहा हूँ, जो एनाइंस हैं उनको क्लासेस ले रहा हूँ, 15 क्लासेस हैं और 15 ही हमारे पास टीचर्स हैं, मैं कैटाइन को टीचर्स ले रहा हूँ। होगा क्या, अगर एक कैटाइन बाहर निकल जाता है, मतलब एक कैटाइन, एक टीचर छुट्टी पे चले जाता है, तो हमारे पास क्या है, क्लासेस, एक क्लास वैकेंट हो गई। अब एक क्लास वैकेंट होने का मतलब कि एक वैकेंसी बन गई, तो क्या करते हैं हम, एक टीचर को 2 क्लासेस दे देते हैं। सेम इज द केस, यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई तो साथ वाले कैटाइन ने 2 पॉजिटिव हो गया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो इसमें 2 केसेस आ जाएंगे, या तो कैटाइन बाहर निकल जाए, दूसरा ये है कि एनाइन अगर इंटरस्टिशियल साइड में एंटर कर जाए। लेट अस सपोज एनाइन एंटर कर गया इंटरस्टिशियल साइड में, तो उससे क्या होगा, जैसे ही क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो उसके सराउंडिंग वाला जो कैटाइन होगा वो उस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन के बीच में हमने जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो आज हमने डिस्कस किया है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन सारों को कंपाइल करके, स्टोकियोमेट्रिक एज वेल एज इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को कंपाइल करके आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा 5 मार्क्स का, दैट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।